Very good morning, class. Welcome back after summer vacation. Again, we'll start our chapter with this pledge. So, let us take a pledge with me. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. So, class, today we'll start second chapter from geography part. So, name of the chapter is population dynamics. Population dynamics means population में जो उतार चढ़ाव आते हैं, बढ़ती कम होती रहती है. So population क्या है? Population refers to all the people living in an area, a region or country. तो एक एरिया में, रीजन में, ठीक है, कंट्री में रहने वाले लोगों को पॉपुलेशन बोला जाता है. ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स ग्लोबल पॉपुलेशन वाज वेरी लो, रीचिंग परहैप्स सम 1,25,000 पीपल अ मिलियन ईयर्स एगो. तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, पुराने टाइम में जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन थी, वो बहुत कम थी. रीचिंग परहैप्स सम 1,25,000 पीपल अ मिलियन ईयर्स एगो इतनी ही पॉपुलेशन थी. ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स ago, when people first began to domesticate animals and cultivate crops, the world population was no more than 5 million. जब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पीछे की बात है, जब लोगों ने डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया था, क्रॉप्स उगानी स्टार्ट की थी. वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज नो मोर, उस टाइम भी 5 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी. Known as a Neolithic revolution, it led hunter-gatherers to lead a more sedentary lifestyle, significantly altering the relationship between people and their environment. Despite that, the average annual population growth rate during this age was less than 0.1%. तो क्या था, एवरेज एनुअल जो थी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की, वो इस एज में 0.1% से भी कम थी. हाउएवर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी However, as a result of technology advancement, the carrying capacity of the land improved and population increased. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड इम्प्रूव हुई और पॉपुलेशन बढ़ी. कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द कैरिंग कैपेसिटी इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट द रिसोर्स ऑफ अ गिवन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट. कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो उस एनवायरनमेंट के, उस जगह के रिसोर्सेज सपोर्ट कर सकते हैं जितनी पॉपुलेशन को. बाय 3500 BCE global population reached 30 million. Until 2000 years ago, this had risen to about 250 million. तो 35 BCE तक जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो 30 मिलियन थी. एंड टिल 2000 ईयर्स एगो, और 2000 ईयर एगो तक भी दिस हैड राइजन टू अबाउट 250 मिलियन तक ही ये बढ़ी थी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इट्स distribution of the population in the world. We have 10 most populated countries in the world. June 30, 2017. ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना.
In the second number, India, United States, Indonesia, next Pakistan, then Brazil. We change the position of these two countries. Nigeria, Bangladesh, Russia, and on the 10th position is Mexico. The world population is not evenly distributed. The way the population is spread out over a given area from a small region to the earth as a whole is known as population distribution. Some countries like China are densely populated while countries like Vatican City have a sparse population. Means China जो है उसमें बहुत ज़्यादा population है और जो Vatican City है उसमें बहुत कम population है. Next है population density is the average number of people per square kilometer or miles in a country or region. Population density क्या है? Average number of people पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल्स इन अ कंट्री और अ रीजन. तो एक जगह पर या एक कंट्री पर 1 किलोमीटर स्क्वायर जो स्पेस है उस पर कितने लोग रह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ लैंड टू इट्स एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या हम करेंगे कि इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल्स इन अ कंट्री और रीजन. कि द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ लैंड टू इट्स एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. जो रेशो होती है लोगों की उस जगह पर रहने वाले लोगों की और उस जगह की जो रेशो होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट वी हैव अ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन. द आइडिया ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन हैज़ बीन मेनली अंडरस्टूड इन एन इकोनॉमिक सेंस. तो क्या है जो आइडिया है ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एक मींस एवरेज पॉपुलेशन का वो मेनली अंडरस्टूड हम कर सकते हैं उस जगह की इकोनॉमिक सेंस से कि वहाँ इकोनॉमिकली वो जगह कैसी है. एट फर्स्ट an increasing population allows for a fuller exploitation of a country's resource base causing living standards. तो जब population बढ़ती है तो उसके साथ क्या हुआ है? exploitation होता है country के resource का. जब बहुत ज़्यादा population होती है तो resource का exploitation होता है. तो जो रहने के living standards हैं लोगों के वो causing living standards to improve. और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो तो जो इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन उसके साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं उस पॉपुलेशन को वो भी इम्प्रूव होते हैं. तो एक दूसरे को देख कर जॉब करते हैं तो देख कर क्या होता है कि विद इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द people is improved. However, beyond a certain level, population growth would further strain the resources, leading to decline in living standards. The highest average living standards mark the optimum population. Before that population is reached, the country or region can be said to be underpopulated. As the population rise beyond the optimum, the country or region can be said to be ओवर पॉपुलेटेड. कि जो वो ऑप्टिमम सेट किया गया है जब उससे ज़्यादा हो जाती है पॉपुलेशन किसी एरिया की किसी रीजन की तो उसको तो बोलते हैं ओवर पॉपुलेटेड. जब उस ऑप्टिमम रिसोर्स से उस ऑप्टिमम से पॉपुलेशन कम रह जाती है तो उसको बोलते हैं अंडर पॉपुलेशन. अंडर पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन, ओवर ज़्यादा पॉपुलेशन किसी जगह की किसी कंट्री की. सो नेक्स्ट वी हैव अ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन. तो जो कॉजेज है
ओवर पॉपुलेशन के, ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके, या कम पॉपुलेशन है उसके कॉजेज़ क्या है. द नीदरलैंड्स एंड द यूके आर टू ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन यूरोप. तो नीदरलैंड एंड यूके वो कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है यूरोप में. इन द यूके एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन ट्रस्ट स्टेट that 30 million is the optimum population for the country. तो ऑर्गेनाइजेशन है एक यूके की, उसने क्या किया है कि पॉपुलेशन ट्रस्ट स्टेट्स ने ऑप्टिमम किया है कि 30 मिलियन इज़ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन फॉर द कंट्री, कि एक कंट्री के लिए 30 मिलियन पॉपुलेशन ऑप्टिमम है, मीन्स जो डिज़र्व करती है. एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज़ अबाउट 63 मिलियन. तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी है 30 मिलियन, बट यूके की पॉपुलेशन है कितनी 63 मिलियन. साइंस ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर इन बोथ द यूके एंड द नीदरलैंड्स इंक्लूड. तो इसमें क्या है, इंटेंस कंपटीशन फॉर लैंड. तो जगह के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, ओवर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में. हैवी ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक की भीड़ होती है. हाई हाउस प्राइजेज, हाउसेज की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू द डेंसली पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन. हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है. प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है डेंसली पॉपुलेशन का. इन द developing world, China and Bangladesh are countries that many would view as overpopulated. इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो वर्ल्ड डेवलप कर रहा है उसमें चाइना एंड बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ओवर पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. द वन चाइल्ड पॉलिसी कन्फर्म्स द चाइनीज गवर्नमेंट व्यूज बांग्लादेश हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द वर्ल्ड एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्ट्रगल्स फॉर बेसिक अमेनिटीज. इन contrast, Malaysia has been concerned that it was underpopulated in 1982 when Malaysia's population was below 15 million. Its government announced that the country should aim for an ultimate population of 70 million. A range of benefits were put in place to encourage Malaysian people to have large families. तो मलेशिया में पॉपुलेशन कम थी, 15 मिलियंस थी, तो उसके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कंट्रीज शुड एम फॉर एन अल्टीमेट पॉपुलेशन ऑफ 70 मिलियन तक करनी है. तो आ रेंज ऑफ बेनिफिट वर पुट इन प्लेस टू इनकरेज मलेशियन लोगों को इनकरेज किया, वहाँ के लोगों को टू हैव लार्जर फैमिलीज़, बड़ी फैमिलीज़ के लिए. सो इट्स एनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. विद दिस, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.